Siddhi Shah and Hiren Singh. Right? Today we have two personalities, Siddhi Shah and Hiren Mehta sir. Hiren Mehta sir is a Reiki grandmaster and a healer, crystal therapy, and no doubt that he is a teacher also. He is education. And Siddhi, everybody knows Siddhi, she's a dragon healer. So today we have personalities in between. I am there. Right. Right. Very happy to Please meet switch on your everyone. videos, everybody, that we can see each other. We are expecting some more people to join. Yeah. Okay, let us hear something about sir. Sir, થોડુંક તમારું background આપો. મારું નામ હિરેન Hiren મહેતા. એજ્યુકેશન બધું મારું અમદાવાદ થયું છે અને સ્કૂલિંગ સેન્ટ ઝેવિયર્સથી કર્યા પછી રેકીમાં જોઈન થયો 1999માં અને પછી 2001થી રેકી પ્રેક્ટિશનર થઈ ગયો, રેકી માસ્ટર, પછી રેકી ગ્રાન્ડ માસ્ટર અને પછી અમદાવાદમાં સોલા ભાગત વિદ્યાપીઠમાં અને નારણપુરા બે જગ્યાએ મારા રેકીના સેન્ટર ચાલતા હતા. પછી ક્રિસ્ટલ થેરાપી કરી, ક્રિસ્ટલ માસ્ટર્સ બન્યા. ક્રિસ્ટલ્સ જે છે થોડીક જે એક ઓછું જાણકારી હતી સ્ટાર્ટિંગમાં 2004-5-6માં, ત્યારે એને થોડું ધીરે ધીરે સ્ટાર્ટ કર્યું અને અવેરનેસ કરી. બાય પ્રોફેશન હું ટીચર છું સ્કૂલમાં, અમદાવાદમાં એજી સ્કૂલ અને સીએન વિદ્યાલયમાં હું ટીચર હતો, કોમર્સમાં 11-12 હાયર સેકન્ડરી. પછી સોલા ભાગત વિદ્યાપીઠમાં ભાગવત ઋષિજી સાથે સંપર્કમાં આવ્યા અને ત્યાં અમે સેન્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું. સોલા ભાગત વિદ્યાપીઠના જે ઋષિજી છે ભાગવત ઋષિજી, એમને પણ રેકી શીખવાડી. એમના સન જે છે આનંદ શાસ્ત્રીજી, એમને પણ રેકી શીખવાડી અને ઘણા બધા લોકોને, એટલે આટલા વર્ષોથી ત્યાં કરી, ક્રિસ્ટલ કરીને. હવે હું અત્યારે સુરત છું અત્યારના રાતમાં, અને સુરતમાં અત્યારે અહીંયા હું એઝ એ ટીચર છું સ્કૂલમાં, ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં એકાઉન્ટન્સી સબ્જેક્ટમાં, અને રેકીનું પણ ચાલે છે. અવેરનેસ મેઇન તો રેકીની અવેરનેસ અને એના જે લેક્ચર્સ હોય છે, સર્ટિફિકેશન કોર્સ હોય છે, લેવલ 4 અલગ અલગ લેવલ, એનું જેવી વ્યક્તિને જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ સાથે રેકી પહેલા થેરાપી આપીએ છીએ, પછી એનો કોર્સ એમને કરવો હોય તો કોર્સ સર્ટિફિકેશન વાળું, પછી ક્રિસ્ટલ વગેરે વગેરે અમારું અત્યારના ચાલે. Here I have one question. Language, which language you all can understand? We'll speak in that language. Hindi, English or Gujarati? Everybody understands Gujarati? Yes or Yes, no? ma'am. Yes. Everybody? I don't think, because certain people looking at their surnames, I don't think they understand. No, ma'am, not at all. Only Hindi or English. Hindi or English? Okay. Okay, fine. Fine. We'll take it in मेरे both मेरे ख्याल से languages. नेताजी, मेरे ख्याल से हिंदी में बात होगी तो करीब करीब सभी लोगों को समझ में आएगी. गुजराती है, इसीलिए वो मैंने लोग पूछा, समझ सकते हैं. मैंने देखा जी। 2-3 लोगों को देखा मैंने, तो वो जी. नॉन गुजराती है, मैंने देखा, इसीलिए मैंने पूछा. यस. हिंदी मेरे ख्याल से गुजराती भी समझते हैं, इंग्लिश वाले भी हिंदी समझते हैं, तो Yes. हिंदी में अगर बात करेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बेटर रहेगा. ठीक नहीं है, तो we'll कोई continue दिक्कत with नहीं. Hindi. अगर उनको हिंदी नहीं आती तो अपनी भाषा में बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, यहाँ सभी को सभी लैंग्वेजेस आती है, इसीलिए मैंने पूछ लिया कि कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए कंफर्टेबल होगी. कौशिक भाई, आपको कुछ बोलना है? हाँ मैडम, हिंदी या गुजराती कोई भी होगा चलेगा. ओके, ठीक है. Now Siddhi, you introduce yourself. हाँ, मेरा नाम कौशिक भट्ट है. नहीं, और मैं आपको अभी नहीं बोल रही हूँ मैं, सिद्धि को बोल रही हूँ. सिद्धि को, ओके ओके सिद्धि शाह. हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सिद्धि शाह. ओके, और मैं पिछले 5 सालों से एज अ हीलर काम कर रही हूँ. इंडिया में ड्रैगन हीलिंग की पायनियर हूँ. कुछ मिनट्स में, बस कुछ मिनट्स में, 1 से 2 मिनट में भी जो हीलिंग देती हूँ उसमें बहुत सारे फर्क लाए हैं. सो मैं वर्क कर रही हूँ फैट रिडक्शन पे. लोग मेरे पास आते हैं महीने में, यानी कि सिर्फ 4 हफ्ते में 2-2 इंच
कम करके जाते हैं, चाहे अपना पेट हो, चाहे अपने थाइज हो, जो भी है। उसके अलावा वर्क करती हूँ मनी हीलिंग पे और रिलेशनशिप हीलिंग पे। इन सब एरियाज में बस कुछ 2-3 सेशंस में भी मैंने बहुत रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स दिए हैं। द सेलेस्टियल ड्रैगन्स हीलिंग सिस्टम, जो कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड है, उसकी मैं फाउंडर हूँ और मैं ये सिखाती हूँ लोगों को भी। अभी तक मोर देन 100 हीलिंग कोर्सेज की मैं मास्टर रह चुकी हूँ और मेरा फोटे है ड्रैगन्स के साथ काम करने में, गॉडेसेस के साथ काम करने में और एंजल्स के साथ काम करने में। तो आज के इस कॉल में हम वैलेंटाइंस डे स्पेशल है और इसीलिए मैं आपके लिए कुछ गॉडेस रेमेडीज और ड्रैगन रेमेडीज भी लेकर आई हूँ। तो बस दी जैसे लेके जा रहे हैं हमें इस सफर पे, उस पे जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज करेंगे हम। आज हमारा मेन पर्पस यहाँ पर मिलने का है कि कल हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे 2 तरह से सेलिब्रेट होता है। हमारे इंडिया में उसको माता पिता दिवस भी कहा गया है, जो हम माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करते हैं। और दूसरा है वैलेंटाइंस डे, सेंट वैलेंटाइंस ने जो इंग्लैंड में शुरू किया था वो। तो कोई भी एंगल से देखा जाओ, इट इज रिस्पेक्ट एंड लव एंड केयर फॉर पीपल, राइट। तो हमारे यहाँ आने का मकसद यही है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं। कई लोगों की अपने माता पिता से नहीं बनती है, कई लोगों की अपनी वाइफ से नहीं बनती है, कई लोगों की अपने हस्बैंड से नहीं बनती है। तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज जो घर के हैं, वो वैलेंटाइंस डे के अवसर पर हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में डालें, वो हमारा मकसद है कि कल हम ऐसे कौन से उपाय करें या क्या पहने या क्या करें जिसकी वजह से हमारा जो एक दूसरे के साथ का जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो। फेविकॉल का जोड़ होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। So इसीलिए आज हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिरर फाउंडेशन हैज वंस अगेन कम बैक विद द जूम सेशन एंड अब धीरे धीरे हम ये सेशंस करते रहेंगे। अगेन टुमारो वी हैव शिवरात्रि स्पेशल, राइट। सो धीरे धीरे वी आर कमिंग बैक। Before we start with Hiren sir and Siddesh, एक छोटा सा उपाय मैं देना चाहूंगी और वैलेंटाइंस डे। कल सुबह सभी लोग अपने माता पिता के पैरों में लाल फूल अर्पण कीजिए एंड जिनकी अपने वाइफ से नहीं बनती है, वो एक डार्क चॉकलेट को एक रोज के साथ लपेट के दीजिए एंड मेक दैट पर्सन ईट। अपने हाथों से आप खिलाइए और एक ही बाइट देनी है और नेक्स्ट बाइट जो है वो खुद खानी है। If a wife is doing, then do it the same way. And if it is a red rose, then the bonding will be strong. उसकी पत्तियों के साथ खाना है। So this is छोटा सा नुस्खा of making a strong relationship. Now I'll give Hiren sir. Hiren sir, please continue. हाँ, नमस्कार। रेकी जो है वो एक जापानीज टेक्निक है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरापी। अभी ये हमारे ऋग्वेद में सबसे प्राचीन विद्या में से एक है। इसमें उसका उल्लेख है। मैं पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन बता दूं रेकी क्या काम करता है। रे, REI, 2 डिफरेंट वर्ड। रे का मतलब है सर्वत्र। ऋग्वेद में उसका उल्लेख है। अयम हस्त नाम का एक पैराग्राफ है ऋग्वेद, जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसमें रे मतलब सर्वत्र एंड की मतलब चेतना शक्ति, प्राण शक्ति। तो ये जो रेकी है हमारे शरीर के जो 7 चक्र है उसमें ये एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर वो अविरत चलती रहती है। उस अविरत चलने वाली एनर्जी को कंट्रोल करके हमारे शरीर के अंदर का जो शरीर है, जिसको प्राण शरीर कहते हैं, इसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उस तकलीफ को दूर करने के लिए रेकी एक पद्धति है, इसको बनाया गया है। अभी ये रेकी नाम क्यों आया? क्योंकि हमारी ये शक्ति यहाँ लुप्त हो गई और रेकी जापान के प्रोफेसर ने उसको रीडिफाइन किया, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा का वर्ड बनाया रे एंड की, और इसका मतलब है
हमारी शरीर के अंदर वाली ऊर्जा को कंट्रोल करके उसको यूज करना। अब मैं आता हूँ जो टॉपिक पर है, हमारे 7 शरीर है, लेयर्स, 7 लेयर्स हमारे शरीर के। जो बाहर जो दिखता है वो जिसके आजू बाजू है स्थूल शरीर, इसके आजू बाजू है आभा, जिसको बोलते हैं ऑरा योग की भाषा में। हर एक व्यक्ति की ऑरा अलग अलग है। अब ये ऑरा कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, उसका रीजन ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण शरीर है सेकंड नंबर का, उसमें 7 केंद्र है, जिसको 7 चक्र कहते हैं। सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर आता है, फिर आज्ञा चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर जहाँ पेट स्टार्ट होता है वो मणिपुर चक्र, फिर जहाँ नाभि है वो स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। ये 7 चक्र के अंदर हमारे जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्सल पावर है, उस यूनिवर्सल पावर की जो शक्ति है वही हमारे 7 चक्र के अंदर ये शक्ति है, कुदरती जन्म के साथ ही हमें मिलती है, लेकिन बड़े बड़े जैसे होते हैं वो शक्ति लुप्त हो जाती है। अब ये 7 चक्र के अंदर हमारे पंच तत्व जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो पंच तत्व हमारे 5 चक्र के अंदर है। विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान है, मूलाधार चक्र। इसमें पंच तत्व है, पृथ्वी जल। ये पंच तत्व अगर आपके शरीर में परफेक्ट है, परफेक्ट मात्रा में है, और सातों 7 चक्र क्लॉक वाइज अगर परफेक्टली घूमता है, तो आपके शरीर मानसिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे रीजन है जिसके कारण आपके चक्र एंटी क्लॉक घूमते हैं, जो हमें नहीं पता है। वो सिर्फ रेकी हीलर या जो भी हीलर है जो जानते हैं, या खुद आप सीखे हो तो आपको पता चलेगा। वाइब्रेशन ऐसा है कि आप एंटी क्लॉक आपके चक्कर घूम रहे हैं, तो उस चक्कर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बस आग्नेय चक्र है जो हमारे थर्ड आई है, अगर वो चक्कर एंटी क्लॉक घूमता है तो उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। हृदय विशुद्ध चक्र रिलेटेड है तो थॉट से रिलेटेड आएंगे, लंग्स रिलेटेड आएंगे, हार्ट के प्रॉब्लम। तो ये पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको बैलेंस करना जरूरी है। जो रेकी हीलर्स जो भी होते हैं, कोई भी रेकी हीलर्स आपको वो बैलेंस करके देंगे, इसको बोलते हैं चक्कर बैलेंस की टेक्निक। अब रिलेशन कैसे मजबूत किया जाए, जो हमारा मेन टॉपिक है, बहुत आसान चीज है। हम लोग क्या है कि आफ्टर सम इयर्स रिलेशन में बातचीत कम हो जाती है हमारी। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में, या चिल्ड्रन बड़े हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप अभी बहुत आ गया है। रीजन है मोबाइल और टीवी, बेसिक से सबको पता है। कम्युनिकेशन गैप जब भी बढ़ेगा तब तक हमारे रिलेशन, हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो कम हो जाएगी। एक दूसरे की जो पसंद नापसंद वो हमें नहीं पता चलेगी, या उससे हम दूर होते जाएंगे, क्योंकि हमारा हम मनुष्य है, हमारी पसंद बदलती रहती है, हमारे टेस्ट चेंज होते रहते हैं आपको सम एज। तो इसलिए जितना हो सके दिन में एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए कि यह टाइम पर टीवी मोबाइल साइड में रखकर सिर्फ साथ में बैठ के डिनर करना है, बेसिक। और एक दूसरे की जो डिफरेंसेस है ना उसको डिस्कस करना है, पॉजिटिव पॉइंट को नहीं, नेगेटिव पॉइंट। मतलब कि हमें लगता है नेगेटिव लेकिन दूसरे को नहीं लगता है, लेकिन इसलिए मैं वर्ड बोलो डिफरेंस, कि तुम्हारा डिफरेंसेस क्या है, थॉट प्रोसेस, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। तो जितना चर्चा करेंगे ना डेली बेसिस पर, आफ्टर 1 वीक वो डिफरेंसेस जो है ना वो आपको पसंद में आने लगेंगे। अच्छा, इसके डिफरेंसेस आप दूसरी टाइम उस नापसंद चीज को सामने वाले की बात ही नहीं करेंगे, या उसको आप टोकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया कि उसको वही चीज पसंद है। तो हमने स्पेस दिया एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि मैं ये करूंगा तो आपको वही करना है, नहीं। एक डिस्कस कीजिए। अगर चिल्ड्रन आपके कंट्रोल में नहीं है, अभी प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं मोबाइल ज्यादा देखते हैं, तो रीजन क्या है कि आप उससे बातचीत नहीं करते, इसलिए उसको इस ऑल्टरनेट ऑप्शन में जाना पड़ता है। सेम ऐसा हस्बैंड वाइफ में, आप कितने दिन में कितनी बार आप उसके साथ नॉर्मल बातचीत करते हैं, कोई एक अच्छा सा वर्ड यूज करते हो, तो ऐसे इमोजीज भेजते हो, कितना करते हो दिन में, कम या नहीं। या कभी कोई बर्थडे है या कुछ एनिवर्सरी तभी करते हो। नहीं, ऐसा मत करिए। रेगुलर रीटिंग, एवरी डे, लंच और डिनर जो आपकी कन्वीनियंस है वो साथ में करिए। और ये जो जैसे बोला जो पंच तत्व है उसको बैलेंस कैसे किया जाए, वो आता है जितना माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आप जितने अपने आप से बात करेंगे, जितना आप एकांत में रहेंगे। दिन में 15 मिनट एकांत भी जरूरी है आपके सारे चक्र को नॉर्मल करने में, और आपके जो पंच तत्व है उसको बैलेंस। एकांत और अकेलापन दोनों में बहुत फर्क है। तो दिन में या हफ्ते में एक बार अपने आप को कम आवर्स के लिए एकांत में रख दीजिए, फ्रेश हो जाएंगे, बातचीत करो और साथ में बैठो, नॉर्मल कम्युनिकेशन, टीवी मोबाइल बंद। ये एक फर्स्ट स्टेप है, जो आप अंदर खुलेंगे जितना एक दूसरे के साथ ओपनली, पॉजिटिव वे में, लो वॉल्यूम से, तो अच्छा रहेगा। बेसिक
Okay, we'll continue further. But do you know the code for angel of love? If you call angel of love, what is the code for angel of love? Does anybody know? If you chant 70, it is angel of love. If you want love in your life, call angel 70, angel of love. Any more to come? Siddhi? Yeah, you can. जी, थैंक यू। सो उसके पहले कि मैं एक और एंजल ऑफ लव के बारे में बात करूं, मुझे पहले तो ना बहुत सारे येसेस सुनने हैं, ठीक है। और मुझे एक और चीज सबको बतानी है कि आज मैं जो जितने भी टिप्स और जितनी भी चीजें लेके आई हूँ, मैं तभी देने वाली हूँ सबको जब आप ये डिसाइड करें कि कल एक बहुत बढ़िया गिफ्ट आप अपने दोस्तों को देंगे। और बढ़िया गिफ्ट जिसमें आपको कुछ भी खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, वो ये है कि इस ग्रुप की इनवाइट लिंक आप अपने दोस्तों तक भेजें, क्योंकि कल जो रेमेडीज इस ग्रुप में शेयर होने वाली है और आगे चल के दी इतने इनिशिएटिव लेते हैं और वापस से उन्होंने दोबारा ये इनिशिएटिव लेके काम चालू किया है, तो हमें उनको सपोर्ट करना है। और हर एक ने एटलीस्ट 5-5 जन को ग्रुप की लिंक भेजकर यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो मुझे यस सुनने मिलेगा या चैट विंडो में कोई यस लिखेगा? यस यस 100%। यस यस यस, थैंक यू Yes. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अभी हम बात करेंगे एंजल के बारे में, जो कि लव के एंजल्स गिने जाते हैं, ठीक है। सो हम ज्यादातर मानते हैं आर्कएंजल शैम्यूएल को, CHAMUEL, आर्कएंजल शैम्यूएल। बट हमारे पुराणों में, हिंदुत्व में और अदरवाइज हम कौन से गॉड्स गॉडेसेस को मानते हैं जो कि लव के हैं? कोई मुझे बता पाएगा? कामदेव और एंड रति उनकी वाइफ। ठीक है, तो वो थोड़ा कृष्ण राधा कृष्ण राधा तो भी। कृष्ण जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। हाँ जी। तो आज इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि हम हमारी लव एनर्जी कैसे शुरू करें। जैसे दी ने कहा कि लव एनर्जी या वैलेंटाइंस डे को माता पिता दिन के तरीके से भी मनाया जा सकता है और ये सेंट वैलेंटाइंस का दिन है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम उस स्पेस से आ रहे हैं जो कि अनकंडीशनल लव है। जैसे अभी किसी ने कहा राधा कृष्ण, तो उनको तो अनकंडीशनल लव ही है, ना कुछ रिटर्न में चाहिए, बस अपना प्यार बहाते जा रहे हैं। वही प्यार है लक्ष्मी जी और विष्णु जी का, और वही एनर्जी है आर्कएंजल शैम्यूएल। तो जो लोगों ने आज तक आर्कएंजल शैम्यूएल का नाम नहीं सुना है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये सब एक ही अच्छे तरीके के और बहुत ही प्योर वाइब्रेशन से चलने वाले हायर बींग्स हैं। सो एंजल को अगर हिंदी में कहे तो हम देवदूत भी कह सकते हैं, जो कि ऐसे 5th डिमेंशनल बीइंग है। हम रहते हैं 3rd डिमेंशन में, हमारे ऊपर 4th, हमारे ऊपर 5th, और उसके ऊपर जितने भी डिमेंशंस हैं वो हर एक डिमेंशन में हायर बीइंग्स रहते हैं। सो हमारे ऊपर होते हैं देवदूत, उनके ऊपर होते हैं देव, उनके ऊपर देवों के भी देव होते हैं। सो ऐसी एक हायरार्की बनी है, और हर एक हायरार्की में हर एक देव अपना काम करते चल रहा है। और उसमें जो एंजल्स ऑफ लव है वो हमारे देव भी हो सकते हैं और आर्कएंजल शैम्यूएल। तो बहुत क्विकली एक टिप दे रही हूँ। फ्राइडे के दिन कोकोनट ऑयल का दिया जलाए, उसमें गुलाब की पत्ती का पाउडर डालें। अभी ये आपको कब करना है? जब घर में टंटे चल रहे हैं, एक दूसरे से बन नहीं रही है, और आपको डेफिनेटली पता है कि फॉरगिवनेस की जरूरत है, या दोनों को शांत होने की जरूरत है, या सबको शांत होने की जरूरत है, या किसी ना किसी को शांत होने की जरूरत है। अगर आपके पास गुलाब की पत्ती का पाउडर नहीं है तो आप रोज ऑयल का एक ड्रॉप डाल दीजिए। ये करने से, और हर फ्राइडे टू फ्राइडे, और अगर आपके पास चांदी का दिया है तो ये दिया चांदी के दिए में ही लगाएं। ये करने से धीरे धीरे जो आसपास का वातावरण है वो शांत होने लगेगा। चाहे ये झगड़ा आपके पेरेंट्स से है, चाहे मनमुटाव आपके पार्टनर के साथ है या बच्चों के साथ है,
ये रेमेडी आप काम में ले सकते हैं। अब ये दिया चाहे आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी को लगाएं, चाहे राधा कृष्णा को लगाएं, या आर्कएंजल शैम्यूअल को लगाएं। अभी इसके साथ एक और छोटी चीज बोलती हूँ मेरे तरफ से एज अ पीस ऑफ एडवाइस। इसके साथ कुछ कॉइन्स जरूर रखें। ये कॉइन्स आपको नहीं इस्तेमाल करना है, ये कॉइन्स दूसरे दिन आप दान कर देंगे। चाहे उससे आप एनिमल्स को खाना खिलाएं, चाहे उसे आप गरीबों में बांट दीजिए, या कुछ और कर दीजिए। बट ये रेमेडी आपको कम से कम 7 शुक्रवार करनी है। 11 या 21 करे तो वापस जरूर बताए कि हाउ वाज योर रिजल्ट। Right. सुदीप जी, Anybody has questions? Somebody has questions, I think. Okay. Question है कोई नहीं? Anybody has question? Unmute yourself. Unmute yourself if you have question. I हाँ हाँ मैडम, ये दिया शाम को जलाना है, सुबह जलाना है, कब? जी आप सुबह जलाएं और इस तरीके से जलाएं कि वो दिया आपके एटमॉस्फेयर में एटलीस्ट 1 घंटे चलता रहे। मतलब मंदिर में या घर के सेंटर में? जहां आप भगवान रखते हैं अच्छा, ओके ओके ओके। मंदिर में ही, और आपके बेडरूम में भी ये लगा सकते हैं अगर पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओके। सो 1 घंटा मिनिमम ये दिया चलना है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलनी है। और इसके अलावा आप शाम में भी लगा सकते हैं, जब अच्छा, सब दोनों लोग टाइम करे तो भी? तभी भी लगा सकते। जी हाँ। ओके मैडम, थैंक यू। Anybody else for question? Anybody else has questions? Okay. Now इसमें सबसे मेन क्वेश्चन क्या है हमारा कि वैलेंटाइंस डे मनाए किसके साथ? कभी कभी ये प्रश्न होता है कि हम वैलेंटाइंस डे तो आ गया, अभी वैलेंटाइन ही नहीं है तो मनाए किसके साथ? कल तो हम आपके साथ मनाने वाले हैं। मेरे साथ तो है ही है, पर कई लोगों को ये फील होता है कि भाई मनाया किसके साथ जाए। तो ये मनाना, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ आप वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, तो एक नंबर लिखिए क्विकली 11550। इससे आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा इंसान जिसकी आपको जरूरत है, जिसको आप प्यार कर सके, प्यार दे सके, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। नेक्स्ट वैलेंटाइन डे पक्का उसके साथ होगा। 11550 is the code to attract love in your life. 11550 to attract love life, right? Okay. Now Hiren sir, something about crystals we can have. हाँ अब घर के अंदर कई बार रिलेशंस अच्छे नहीं होते, झगड़े होते रहते, बच्चे का एजुकेशन अच्छा नहीं होता, मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये रीज़न में क्रिस्टल्स बहुत काम में आते हैं। अगर आप रेकी नहीं सीखे होते हैं तो क्रिस्टल्स मंगा सकते हैं कहीं से भी इसको हील करके। तो सबसे पहले आता है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप। अभी ये कई जगह पर आप गूगल में सर्च करेंगे तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली क्रिस्टल्स जो होते हैं उसको वो कहीं पर भी मिलेंगे, लेकिन जब तक क्रिस्टल को आप एक्यूम नहीं करेंगे, शक्तिपात देकर उसको लाइव नहीं करेंगे, तब तक सारे क्रिस्टल्स एक कांच के टुकड़े ही रहेंगे या फिर वो नॉर्मल स्टोन ही रहेंगे जो पत्थर के फॉर्म में आता है। तो कोई भी क्रिस्टल आप कहीं से भी मत लीजिए, कोई भी रेकी हीलर है जो मास्टर है उसके पास उसको हील करवा के क्रिस्टल ले सकते हैं। अब ये जो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो एक रिलेशन को मजबूत करता है, लव के लिए नहीं है। रिलेशन मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक लव आने वाला है आपके रिलेशन के बीच में। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो अलग अलग फॉर्म में आता है, स्टोन के फॉर्म में आता है, ब्रेसलेट के फॉर्म में आता है, पेंडेंट के फॉर्म में आता है, ट्री के फॉर्म में आता है, राइट है। ऐसे अलग अलग फॉर्म में आता है, तो वो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से फॉर्म में आपके घर के अनुसार आप लगा सकते हो। ये इफेक्ट सेम ही रहता है। अब उस रोज कोट जो है रिलेशन को मजबूत करेगा। एक अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में मन मुटाव नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर बातचीत कम है
कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा है तो आपके बेडरूम में जहाँ आप सोते हो वहाँ पर कोई भी जगह पर आप रख सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यहीं रखना है, ऐसे रखना, एक नॉर्मल अच्छे से कपड़े के ऊपर वो क्रिस्टल या स्टोन या ट्री इसको रखना है। अगर आप ब्रेसलेट या पेंडेंट लेते हो तो उसको आपको पहनना है, पूरे दिन आपको पहन के रखना है, जब आप सोने के जाओ तब उसको अच्छे से साइड में रखना है। तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसके साथ आएगा सिट्रीन, ये भी क्रिस्टल है, CITRINE, सिट्रीन एंड मैलेसाइट। ये 3 जो क्रिस्टल है वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। लव अट्रैक्शन के लिए अलग टॉपिक है, वो अलग क्रिस्टल है, लेकिन हम अगर नॉर्मल अभी हमारे जो रिलेशन वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन कलीग सबके साथ अच्छा रिलेशन रहे, इसके लिए मैं इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। वो है ये 3 क्रिस्टल जो काम में आते हैं। तो आपको घर पे रख सकते हो, ऑफिस में भी रख सकते हो, जहाँ पर आपका ज़्यादा आवर्स जाता है तो आप दोनों जगह पे रख सकते हो। तो ये 3 क्रिस्टल आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसको हील करवाना ज़रूरी है। खाली ऐसे ही क्रिस्टल पहनते हैं तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल को जब हम हील करते हैं तब उसकी एनर्जी को मुझे कंट्रोल करके जो व्यक्ति के लिए है उसकी व्यक्ति का नाम का शक्तिपात देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इधर बिजल बेन है, बिजल बेन ने बहुत सारे क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, तो वो क्रिस्टल किसी और को नहीं दे सकते। मुझे बिजल बेन ठाकर का नाम उसके अंदर शक्तिपात रख करके, सपोज ये रहा मेरे पास ट्री है, ये सपोज ये ट्री के फॉर्म में है, ठीक है, तो एक ट्री सपोज मुझे बिजल बेन को देना है तो ये शक्तिपात होगा उसके नाम का 3 डेज, उसको पूरा मुझे हील करना है सारे स्टोन्स को, बिजल बेन का नाम और उनका जो इश्यू है उस इश्यू के साथ उसको शक्तिपात देकर मुझे उनको देना है, ताकि वो उनको ही, और जितने नाम उसके अंदर रखे, सपोज आपके घर में सबके लिए अंदर प्रॉब्लम है तो सबका नाम यानी उस घर को ही वो इफेक्ट करेगा, तब जाके क्रिस्टल अपना काम करेगा और आपके घर या ऑफिस जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। तो ये 3 क्रिस्टल है, जैसे 100 से भी ज़्यादा क्रिस्टल है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन ये 3 जो है मेन, सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज एंड मैलेसाइट, MALACHITE, मैलेसाइट, ये 3 क्रिस्टल फॉर द रिलेशनशिप। थैंक यू। ओके, ये जो सबने अभी बोला कि रिलेशनशिप के लिए हम हर एक कॉर्नर्स में कुछ ना कुछ रख सकते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी कि यही जो हम रखते हैं तो टू स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग, हमने कहीं पर भी ट्री रखा है या क्रिस्टल के बॉल्स रखे हैं या स्टोन्स कहीं पर भी कुछ एनर्जाइज करके रखा है, बट टू मेक द बॉन्डिंग मोर, उसको ना एक हार्ट शेप ऐसे बनाइए, रेड कलर में हार्ट बनाइए, राइट, एक साइड पे आपका नाम लिखिए, एक साइड पे आपके हस्बैंड का नाम लिखिए, जिसके साथ आपको बॉन्डिंग बढ़ानी है, हार्ट के अंदर ही वो लिखिए, और बीच में, दोनों के बीच में एक कोड लिखिए 541, वो कोड आप हार्ट के बीचों बीच रखेंगे, और एक साइड वाइफ का नाम और एक साइड हस्बैंड का नाम, या जिसके साथ आपको बॉन्डिंग बढ़ानी है, लव बढ़ाना है, इट कैन बी मदर एंड चाइल्ड ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग, तो उसके लिए 541 बीच में रखिए, और वो उस जो हमने क्रिस्टल रखा है उसके नीचे फोल्ड करके दबा दीजिए, एनीथिंग, तो वो ज्यादा काम करेगा। Am I right, sir? यस, राइट। Yeah. Over to Siddhi. जी दी, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ये मैं इनफैक्ट नोट कर रही थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान हट गया। और मेरा एक और सवाल था दी आपसे कि जो बोलिए। इसके पहले भी आपने कोड बताया 11550, उसे कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप बता पाए सबको। उसको हम जैसे हीलिंग कोड्स चैंट करते हैं 27 टाइम्स, वही हमने 1 सिटिंग में करना है, 11550, and with an intention that my life, whatever I want, love in my life, attracting love, इस तरह से कोई भी अच्छा सा इंटेंशन, आई एम गेटिंग द परफेक्ट लाइफ पार्टनर, whatever intention you want to give, you can give that. ओके, थैंक यू दी। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब किसी से एक सवाल लिया जाए और उन्हें सोल्यूशन दिया जाए। हाँ ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन है बोलिए। लेकिन हम सवाल उन्हीं से लेंगे जो स्क्रीन पे नजर आएंगे, जो ऐसे स्क्रीन के और पीछे एक बैठे हुए हैं। मैं छोटा सा टिप दे देती हूँ, छोटा सा नंबर दे देती हूँ
जी यूनिवर्सल कोड फॉर लव, यूनिवर्सल कोड फॉर एनीबॉडी। लव हमें चाहिए। सी एवरीवेयर वन साइडेड कभी कुछ नहीं होता। इफ यू गिव यू कैन गेट। यूनिवर्सल कोड फॉर लव इज 35133 35133। This is the universal code for love. Universal love, right? हमने सभी हीलिंग कोड्स जैसे चैंट करते हैं वैसे ही करना है। 35133। You can chant it as 35133, 35133, whatever you want, but एक एक नंबर को डिस्टिंग्विश करना है, अलग से बोलना है। You cannot chant 35133, ऐसे नहीं करना है, right? Okay. Anybody has questions या किसी को कोई इश्यू है जिसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं तो प्लीज यू कैन आस्क। ओके नेहल। हाँ अभी हाँ कैसे हैं? अच्छा ठीक लगा आप है। सबको देख के। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। बस ये पूछना था कि आज ये जो हम रेमेडीज आप बता रहे हैं तो ये सिर्फ हम हीलर्स के लिए है या हम अपने किसी एनीबडी कुछ एनीबडी एनीबडी यू कैन डू। यानी शॉर्ट वीडियो या कुछ बना के ऐसे कर सकते हैं या फिर ये पूरा जो है आज का रिकॉर्डिंग मैं हमारे हम्म, यूट्यूब चैनल पे रखूंगी कल। यू कैन गिव देम, ओके ओके राइट? ओके ओके। और वरना ये हमारे भी अंदर ये सब एंड अगर रेमेडीज दे आपको सकते आपके हैं। क्लाइंट्स को अलग से देना है यू कैन डू। इट इज फॉर ओके एवरीबडी, राइट? ओके 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 थैंक कौशिक भाई। मैं तो ये रेकी हीलिंग, हाँ मैडम, हाँ रेकी हीलिंग का तो हमें तो कुछ आता है नहीं। हाँ मैं अभी वास्तु सीख रहा हूँ और ये मेरी धर्म पत्नी है, वो ज्योतिष सीख रही है गुजरात यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में। अच्छा हाँ मतलब रेकी हीलिंग के लिए हमें इतना कुछ नॉलेज तो है नहीं, और हाँ। इसको अगर सीखना है तो आप में से किसके पास, मतलब जो नजदीक में रहेगा अभी उनके साथ। हाँ सी आजकल आजकल नजदीक और दूर का तो कुछ रहा ही नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, ओके मैडम। आप यहाँ पर जो भी है जैसे हिरेन सर है हाँ या हाँ, सिद्धि है या नेहल है, नेहल भी सिखाती है। ओके बहुत मैडम, लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो रेकी सिखाते हैं। ओके ओके, मैंने पर्सनली अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने हिरेन सर से सीखा था। ठीक है। बराबर, ओके ओके मैडम। और दूसरा सवाल ये था, मुझे अभी रिसेंट में मतलब एक धंधा चालू करना है, मगर इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मतलब जो लेडीज कुर्ती और ये जो लेडीज आइटम रहती है उसका ही करना है। उसकी रेमेडी आपको कल मिलेगी अच्छे से शिवरात्रि ओके में। ओके मैडम, आज ओके, प्रेम की ही बातें करो। अच्छा अच्छा, ओके। किसी का तो अगर हार्ट मैम एक बात कहना चाहता हूँ। कौशिक भाई कह रहे हैं कि कुर्ती के लिए उनको कुछ काम करना है, तो वो हाँ क्या चीज का काम करना चाहते हैं? मैं भी क्लॉथ लाइन से रिलेटेड ही हूँ, अगर उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मतलब सर नया बिजनेस ही ये स्टार्ट करना है, लेडीज राइट है। लेडीज कुर्ती टॉप वगैरह का अहमदाबाद नहीं, में। हाँ तो वो तो वहां पे होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मार्केटिंग प्रॉब्लम होगी या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, क्या चीज के बारे में नहीं आप? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर से लाके उधर करना है इनको, पर वो हाँ कर बस बस, I मतलब have- नया नया ही चालू करना है। हाँ, और अभी फाइनेंशियल तो थोड़ा है ही है, क्योंकि एकदम से नहीं 2-5 लाख रुपए। मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आजकल कुर्तियां इतनी सस्ती और अच्छी मिल रही हैं। हाँ हाँ प्रॉब्लम इज कि कहाँ से शुरू करें। हाँ, बस 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 यहाँ ही, मतलब एक हाँ, एक वो लाइन रेमेडी मिलनी आपको चाहिए। कल मिलेगी। ओके 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 मैम। हाँ महेंद्र भाई તમારું अनम्यूट ये करो, प्लीज बताओ। नमस्ते मैडम। महेंद्र भाई पंड्या, नमस्ते महेंद्र भाई। हाँ, महेंद्र बोर्ड से सूरत से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है।
Anybody has any questions? Okay. Now I think heartbreak, अगर कोई heartbreak से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो हिरेन सर बहुत अच्छी रेमेडी देंगे। हिरेन सर, अभी क्या है कि हार्ट ब्रेक का अभी डेफिनेशन बदल गया है। अभी हर हफ्ते होता है कई बार कि ये हफ्ते इधर है, तो अभी ये जो डेफिनेशन है, मेरे साथ तो यंगस्टर्स बहुत आते हैं क्योंकि मैं 12th में पढ़ाता हूँ कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो वो बहुत सारे लॉट आता है केसेस और एक कॉमन हो गया। तो सबसे पहले चीज की अगर हम हमारा रिलेशन देखें, यानी कि बड़ी उम्र के वो लोग हैं या कोई भी यंगस्टर्स है या हमारे घर में हमारे चिल्ड्रन है जो इस एज में आ गए हैं, अभी क्या है कि तरुण अवस्था बहुत जल्दी आ जाती है। तो अभी एक 15 टू 20 ईयर्स की एज के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो हार्ट ब्रेक का सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे आजू बाजू के लोग जो रहते हैं या हमारे चिल्ड्रन है, बिहेवियर क्या चेंज है, क्या वो थोड़ा जनूनी हो गए हैं, क्या थोड़े वो फ्रस्ट्रेटेड लैंग्वेज में बात करते हैं पेरेंट के साथ या हमारे साथ या किसी और के साथ, ठीक है, या कुछ ना कुछ एक ही चीज ज्यादा ज्यादा करते रहते हैं, क्या उसका जो मूवमेंट है चलने का स्टाइल, वो अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट है, स्लो है, इन अनइवन है, ये सारे सिम्टम्स है उसके कि वो कुछ रिलेशनशिप में कुछ उसको पीछे हो गए, यानी कि धोखा मिला है या कुछ वो हो रहा है। तो वो बहुत फास्ट बोलेंगे, ज्यादा स्पीच उनकी चेंज हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रिलेशन ब्रेक होने का, या फिर हमारा खुद हुआ या अपने से किसी और का या रिलेटिव में है, सबसे पहले बात तो उनसे सामने से अप्रोच करना है। सिंपल सी बात, हमको ऑब्जर्व करके आता है, हम बड़े हैं इस एज में तो हमें ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, हम सामने से अप्रोच करेंगे, वो आंसर नहीं देगा, सेकेंड टाइम अप्रोच करेंगे, क्या बात है तुम बैठो, ये सब नॉर्मल जो टिपिकल है। वो इसके अलावा उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही जाना है और उसके साथ नॉर्मल वॉल्यूम से बात ये करनी है कि अगर तुमको कोई भी ये प्रॉब्लम है तो मेरे पास सॉल्यूशन है, बस उसको खाली ये बता देना है, भले आपके पास ना हो, नहीं है और फिर आप मुझे फोन करना, बताना, मैं आपको बता दूंगा उससे क्या बात करनी है, उसको स्क्रिप्ट क्या बोलनी है। स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसको 2 से 4 बार बोल दिया है कि मेरे पास सॉल्यूशन है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, वो शायद बिजनेस में भी लॉस हुआ है तो भी है, जरूरी है कि लव में फेल हो वो भी एक रीजन है, लेकिन बिजनेस में या फिर कलीग जॉब में भी कहीं हमें तो ये प्रॉब्लम में बाहर निकल के टाइम एक सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल्स आता है। सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन एवेंचुरन, ये क्रिस्टल्स जो है वो रिलेशन को यानी कि हार्ट ब्रेक को उसको हील करने के टाइम काम लगता है, क्योंकि वो हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्र उसमें वायु तत्व अंदर शामिल है। तो वायु तत्व किसके कारण आया है, हमारा जो खान पान की पद्धति है इसमें चेंज हुआ है, उसके रिलेटेड से वायु का प्रमाण बढ़ा है, हार्ट चक्र आपका इम्बैलेंस हुआ है, इसलिए आपका जो रिलेशन है उसमें कोई रीजन से मनमुटाव या डिफरेंसेस आया है, झगड़ा हुआ है, कहीं कम्युनिकेशन कुछ बोल दिया है रिलेशन। तो ग्रीन एवेंचुरन उसको देना है क्रिस्टल। अगर कोई नजदीक में रेकी हीलर है, कोई जानता है, तो उसको वहां जाकर क्रिस्टल के साथ हार्ट चक्र का बैलेंस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना है उनके साथ, ये सबसे सिंपल बात है। और उसको बात करके सामने वाला कोई भी जो पर्सन है उसके साथ मिलकर बीच में मिडल मैन रहेगा। मैं ये खुद करता हूँ, लगभग मैं ये अहमदाबाद में था तब से 2006 से अब तक मैं ये काम करता हूँ। स्टूडेंट के साथ जाता हूँ या कोई बड़े उम्र के रिलेशन में जो कोई आता है उसके साथ मैं बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, पूरे एक जन की पूरी बात सुन लेता हूँ अलग से, कि दूसरा पर्सन है उसकी बात सुनता हूँ, दोनों के बीच में मुझे ऑब्जर्व पता चलता है कि किसकी ज्यादा प्रॉब्लम है, गलती है, उस गलती को उसके सामने रेक्टिफाई करने के दोनों के साथ बात करो तो मिला तो 4 to 5 आवर्स तक दोनों को डिस्कशन करने के बाद सॉल्यूशन आता है। फिर अगर वो नहीं मानते हैं, मतलब नहीं, ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगो आता है सबके बीच में, तो ये ईगो को निकालने के लिए स्वादिष्टान चक्र और हृदय चक्र दोनों को बैलेंस करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी हीलिंग टेक्निक है वो मैं यूज करता हूँ दोनों के साथ, परमिशन के साथ, दोनों की परमिशन के साथ। और फिर ये क्रिस्टल उनके ऑफिस में उनके टेबल पर मैं देता हूँ, क्योंकि वो पहनेंगे नहीं, क्योंकि उनका माइंड स्टेबल नहीं है। तो उसके लिए मुझे उसके ऑफिस में या घर पे ये मैं उसको देता हूँ कि आप ये रखना या अपने पर्स में रखना, इसके लिए तो ये सोल्यूशन आता है। इम्पोर्टेंट बेसिक इज कम्युनिकेशन इनके साथ, और इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा आपको साथ, भले आपको सुनना पड़ेगा। इंसल्ट, मैंने इंसल्ट बहुत सुने हैं, सर आप क्यों बीच में आते हो, आपको क्या है,
ये करना क्योंकि अदरवाइज ये नहीं करते तो वो कोई ना कोई नेगेटिव स्टेप्स ले लेते हैं, और आज में कोई धीरज किसी के पास नहीं है, संयम नहीं रहे तो स्टेप ना ले, इसलिए हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है अगर हमारे घर में ये केस है तो। ओके, राइट राइट। अभी हमारे साथ महेंद्र भाई पंड्या है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा कल वीटीवी में बोलने की जगह हमें ही एक दो टिप्स दे दे यहाँ पे आके। પ્રેમના પંખીડાનું મિલન છે કાલે, તો કેવી રીતે આપણે એને વધારે સારું બનાવી શકીએ એ મહેન્દ્રભાઈ પાસેથી આપણે જાણશું. મહેન્દ્રભાઈ, અવાજ નથી આવતો. સિદ્ધિ, એમનું અનમ્યુટ કરો ને. હવે આવે છે? આવ્યો આવ્યો આવ્યો. अभी तो मैं आप सबको सुन रहा हूँ, अभी स्टार्ट ही किया है, देखते क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है अभी। नहीं, पर आप एक दो कमेंट्स तो देख के ही जाइए, क्योंकि वीटीवी में तो कल आप बताएंगे तो हमें भी बता दीजिए। दो चीजें दिखती है, या तो युवावस्था में उन्माद या प्रेम की अभिव्यक्ति। दोनों में ग्रह बल देखा जाए तो शुक्र है वो एक युवावस्था में एक उन्माद देता है, वो वैलेंटाइन डे है। और प्रेम की अभिव्यक्ति में अगर देखा जाए तो वो वैलेंटाइन जिसको हम ऋषि बोलते हैं, जिसके नाम से 14 फरवरी का महत्व माना गया है। तो बात तो दोनों एक ही है, लेकिन कहाँ तक और कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, क्यों चलना है, किसके साथ चलना है और आगे चल के क्या करना है। सिर्फ एक दिन का अगर होता तो हमारे जो ऋषिगण जो है इसने बोला है कि धन्यो गृहस्थाश्रम, तो उसकी व्युत्पत्ति नहीं हुई होती। लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अच्छा दिन चुना गया है। यहाँ तो माना जाता है कि सदैव प्रेम की अभिव्यक्ति होती रहती है पूरे जीवन में, लेकिन एक दिन अच्छा मिलता है तो मिल बांट के जो भी आपकी जो चाहत होती है इसके साथ प्रपोज करें और अच्छी तरह से आगे जो भी करना है वो आगे बढ़े। तो शुक्र का उन्माद या बृहस्पति का एक पीढ़ता, गुजराती में कहिए ना कि पीढ़ता जोवा मळे, तो बस आज મને ખબર પડે, બાકી પૂછી ખબર પડે આવી બાબતો મને। મેચ્યોરિટી સમય માણસને શીખવાડે છે। તો ઘણી વખત આ સમય આપણે ગ્રહોના આધારે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ કઈ અવસ્થા, શુક્ર મંગળની યુતિ, શુક્ર સૂર્યની યુતિ, એવા સમય આપણને એક પ્રેમની અભિવ્યક્તિની અંદર કદાચ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ જેને કહી શકાય કે જેમાં પરસ્પર લાગણીના સંબંધોની સાથે સાથે એક અલગ પ્રકારની એક જીવન જીવવાની એક તાલાવેલી જેને કહી શકાય, જેને પ્રેમનો એક જેને કહેવાય કે એક ઉભરો કહી શકાય એવું નહીં, પણ એક ઠંડો પ્રેમ એ અભિવ્યક્તિ થાય, પણ કદાચ એના ચહેરા ઉપર કે એના પેલા ઉપર ન દેખાય, પણ ઘણી વખત આપણને દેખાય કે ભાઈ એક વાર્તા બહુ સરસ વાંચી લે મીતાબેન મેં કે એક પત્ની એના પતિને કાયમ પૂછ્યા કરે કે આજો બાજુવાળો કેવી એની પત્નીને સારો પ્રેમ કરે, તમે મને પ્રેમ કરતા જ નથી। સતત આ વસ્તુ કયા કરે, જ્યાં રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જાય ફ્રેન્ડ હતા એટલે સાથે સાથે તો રહેવાનું થાય, તો જ્યાં જાય ત્યાં કે જુઓ કેટલો મસ્ત પ્રેમ કરે, તમે મને પ્રેમ કરતા જ નથી। અને એમાં એક વખત જે રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવા બેઠા હતા ત્યાં ફાયર આગ લાગી, તો પેલો જે નતો પ્રેમ કરતો એની પત્નીને ઉપાડીને ભાગ્યો, અને જે બહુ પ્રેમ કરતો હતો એની પત્નીને મૂકીને ભાગી ગયો। ત્યારે તમને ખબર પડે પ્રેમ આને કહેવાય કે જે ઉપાડી ભાગી શકે। બરાબર, આ અભિવ્યક્તિ છે। બરાબર, થેન્ક યુ મહેન્દ્રભાઈ, થેન્ક યુ। સિદ્ધિ, हाँ, योर टर्न। जी, थैंक यू सो मच। सो एक्चुअली प्यार की अभिव्यक्ति के बाद ये सब बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम लोग कभी ना कभी ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जहां पे समझ में नहीं आता कि भाई अब क्या करें। ये तो चाहिए लाइफ में, ना हमें एनर्जी सपोर्ट कर रही है, ना हमें घर से या यूनिवर्स से किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा, और हम बैठे तो भगवान का नाम लेने में भी मन नहीं लगता, कुछ और करे तो वहां भी मन नहीं लगता। तो ऐसे टाइम में ऐसी कौन सी रेमेडी है जो आपको विद इन 2 मिनट्स बहुत पावर से भर दे, अनकंडीशनल लव से भर दे, जो दी बोल रहे थे थोड़ी देर के पहले, यूनिवर्सल लव।
वो ऐसी स्पेस में जाए जो अभी महेंद्र जी बोल रहे थे कि उन्माद नहीं, बट एक ऐसे स्पेस में लेके जाए जहां आपकी एनर्जी बढ़ती रहे और अनकंडीशनल लव की। तो उसके लिए आज मैं आपको एक महाकाली माँ का बीज मंत्र दे रही हूँ। उसे कहते हैं फ्लिम। सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके चैंट करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान नहीं करना है। और जब आप अपना सुबह दिया लगाएं, सबसे पहले माँ के सामने अपनी प्रार्थना रखें कि भाई ये करना है मुझे। अगर है और चाहे तो घी या तिल के तेल का दिया लगाएं, प्रार्थना करें और 2 मिनट 21 दिन के लिए रोजाना सिर्फ 2 मिनट क्लीन का जाप करें। आपको गिनना नहीं है कि 1 हो रहे हैं, 108 हो रहे हैं, 111 हो रहे, कुछ नहीं गिनना। आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके हार्ट चक्र के ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ योर हार्ट, और इस मंत्र के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये करते रहें, आपके फीडबैक भी हम लोग को देते रहे कि कैसा आपको लगा ये करके। ओके, राइट। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, जो भी ये कर रहा है उपाय, उसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। सिद्धि, राइट योर नंबर in the chat box. Hiren sir, write your number in the chat box so that people can approach you. अच्छा, अभी ना मैं जो रीडिंग्स करती हूँ उसमें मेरे को बहुत बार एक सवाल आता है, मैडम when will I get my twin flame? राइट, वो बार बार पूछते हैं ट्विन फ्लेम का क्या है, when will I get them, ये है वो है, सब कुछ चलता रहता है, राइट। सोल कनेक्शन कैसे होगा, ट्विन सोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये प्रश्न का उत्तर मैं दिन में 25 लोगों को देती हूँ। दिन में 25 रीडिंग ऐसी करती हूँ, वो ट्विन फ्लेम ये है, सोलमेट कब मिलेगा, ये सब चलता रहता है। और सारे यंगस्टर्स का ही ये क्वेश्चन होता है। तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए हमारे पास एक कोड है 571। 571 आप अगर चैंट करते हैं तो थोड़े दिन में आपको रिजल्ट भी मिलता है इसका। 571 इज द कोड फॉर ट्विन फ्लेम या सोलमेट, राइट। अभी अभी जैसे हिरेन सर ने बताया था कि हार्ट ब्रेक होता है, तो हाउ टू डील विद हार्ट ब्रेक, वो तो उन्होंने प्रैक्टिकली हमें बताया कि हाउ टू डील विद हार्ट ब्रेक। बट इसका अगर हमें वो पर्सन को बताना नहीं है कि वी आर डीलिंग विद यू, आपको वहां वो सदमे में से हम बाहर निकाल रहे हैं या आपके ऊपर कोई थेरेपी हम कर रहे हैं, अगर आपको नहीं बताना है और उसके ऊपर हमने रेमेडी करनी है, तो टेक अ ब्लैक एंड रेड कैंडल, टेक अ ब्लैक एंड रेड स्कल कैंडल, स्कल कैंडल, उसके ऊपर हमारा इंटेंशन लिखिए एंड वो कैंडल को हम जलाएंगे उसको, एंड दिस हैज टू हैपन आफ्टर 11 PM, आफ्टर 11 PM, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आई थिंक 3 कैंडल्स में थोड़ा सा उसका he or she will come out of that person's energies, influence में से थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा। So black and red, it is 2 colors candle, 1 candle in two colors. Take that candle, write your intention that I am doing it for so and so person to come out from the influence or from the aura of that other person. If you know the person's name, well and good. If you don't know, then also keep an intention and burn the candles. It will give you magical effect. Sometimes, you know, where logic doesn't work, magic works. So it gives you magical effect. Right. Hiren sir. कई बार अगर आप रेकी नहीं दे सकते, आप नहीं जानते, तो हम डिस्टेंस से भी रेकी देते हैं। हमारा पूरा रेकी का ग्रुप है,
पूरा अहमदाबाद और सूरत का पूरा ग्रुप है। सारे बहुत सारे हमारे मेरे हमें मैं 2002 से सिखाता हूँ। लगभग 4000 से ज़्यादा लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मोर देन 4000। और हमने डिस्टेंस से भी बहुत सारे रेकी हम देते हैं। केसेस आते हैं एवरीडे 4 to 5 केसेस आते हैं, तो हम सॉल्व करते हैं सारे मेंबर्स। तो आपको अगर कोई ऐसा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप पर्सनली नहीं आ सकते या कुछ इमरजेंसी है, तो एनी टाइम रात को भी कभी भी आप हमें फोन या मैसेज करें। जो भी केस होता है, जब 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 से अभी मैडम ने बोला कि हम किसी को नहीं बताना है, तो ऐसे भी होता है कि कई बार हमें अपने आप इनिशिएटिव लेकर सॉल्व करना होता है कि ये दोनों के अंदर झगड़ा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी लास्ट मंथ ऐसा है तो डाइवोर्स का केस मतलब वो उस नौबत तक आ गए थे। तो उसी केस में हमें डिस्टेंस से दोनों को हील करना होता है। तो हम जानते थे, इसलिए उसका फोटो की जरूरत नहीं। लेकिन जो अननोन है मेरे लिए, सपोज आप है, आपकी कोई रिलेटिव का प्रॉब्लम है, आप मुझे शेयर करते हो, तो मुझे उनका फोटो और उसका नाम, बस 2 ही चीज चाहिए। तो उससे हम उनके हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र और अग्नि चक्रों को हिल करके उनको जो थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। हार्ट में जो बहुत सारे ब्लॉकेज आ गए हैं उसके अंदर, वो नेगेटिविटी अंदर आ गई, उसको हिल कर दे, क्लीन कर दे, ताकि उनको क्लैरिटी आए। वो जो सामने वाला बोलता है वो सुन, एक दूसरे के बाद सुनने तक वो हम ब्रिज बनाते हैं दोनों। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आप नहीं करते तो आप हमें कभी भी कोई भी रेकी हीलर से आप बात कर सकते हो, और हम उसको हेल्प करते डिस्टेंस से भी। और वो कभी भी वो क्या करता है, कोई पोजीशन में उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम उनका यहाँ से डिस्टेंस से करते। तो ये एक आप नोट कर सकते हैं कि एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट एनी रेकी हीलर। और Right. Anybody, any questions up till now? अनम्यूट Siddhi? कर, महेंद्र भाई अनम्यूट करो। Unmute. મહેન્દ્ર ભાઈ માઇક ખોલો. માઇક નું સિમ્બોલ હશે ને ત્યાં ક્લિક કરો મહેન્દ્રભાઈ. સિદ્ધિ હા ઓકે. આવે છે અવાજ? હા હવે આવ્યો. એવી કોઈ રેકીમાં પેલું છે કે કોઈની ઊંઘ ઉડાડી શકાય? ઊંઘ ઉડાડવી છે? આ રાકેશ પરિયાર ક્યાંના ઊંઘે છે? અચ્છા. રાકેશ ભાઈ છું મંતર. અરે सबके सो रहे हैं। રેકીની જરૂર નથી. राकेश परिहार जी सो मत. वरना रेकी हो जाएगी यहाँ से। नींद हाँ, खराब हो हो यहाँ जाएगी। से छू मंतर कर देंगे. हो जाएगी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल वो हो चुकी है। सॉरी हो चुकी है। कंटिन्यू। थैंक यू। नेहल you want to say something? ના બસ બહુ મજા આવી રહી છે. સરસ સરસ ટિપ્સ છે અને હું તો જસ્ટ બિગનર છું આ લાઈનમાં, એટલે ધીરે ધીરે શીખી રહ્યું છું તમારા જેવા બધા તજજ્ઞો પાસેથી. તો એ નોલેજ જે ક્લાયન્ટ્સ ને જરૂરી હોય ને જેને હેલ્પફુલ હોય એને બસ પહોંચાડું, એવી જ મારી એ છે પ્રયત્ન અત્યારે. તો Right. બહુ Okay. મજા આવી. હવે આપણે પ્રોગ્રામ આના વેબિનારના ક્લોઝર તરફ જઈ રહ્યા છીએ. એક છેલ્લી નાનકડી ટીપ મારા તરફથી. આપણે જનરલી હનુમાનજીને શું કામ યાદ કરીએ? બલ બુદ્ધિ સંકટ વિદ્યા. રસ્તા મળે। બલ બુદ્ધિ વિદ્યા. ઘણા બધા કારણો, પણ એમાંથી એક કારણ આ છે. Am I right? બુદ્ધિ વિદ્યા. તમને ખબર Cleansing છે and protection. હનુમાનજી Cleansing and protection also. cleansing and protection. Anything else? હનુમાનજી રામજીને is a very big, રામજીને સુધી પહોંચાડવા આપણી વાત. see Hanumanji is a bridge between Ram and संकट Sita. मोचन, संकट मोचन। No, it is not. For love I am talking. संकट है तो वो तो हिलाते ही है वो. Actually राम जी સૌથી વધારે ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ જેને કહી શકાય ને, એ હનુમાનજીનો હતો. હા. એક પરમ જેને કહેવાય ને કે ભાઈ એક 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 સમર્પિતનો ભાવ, અને એક જ ને જોવું, અને એટલા માટે તો છાતી ચીરીને બતાવવું પડતું, જો મારા હૃદયમાં પણ રામ છે. હા. એટલે આ જે ભાવ છે ને એ તો ખરો જ, પણ બીજો પણ તમે કોઈ હશે કંઈક. હા.
Actually, હનુમાનજી is a bridge between Ram and Sita. જ્યારે સીતાજી ખોવાઈ ગયા હતા ત્યારે હનુમાનજી સીતાને ગોતી લાવ્યા હતા, રાઈટ? અને સેમ થિંગ if you use it as an ઉપાય, તો તમારી જિંદગીમાં જે બી વસ્તુની ઉણપ છે, પ્રેમની ઉણપ છે, તો એમની પાસે પ્રેમ માંગો. જેની બી ઉણપ છે એ તમે હનુમાનજી પાસે મંગળવારે ચમેલીના તેલ સાથે એક સોપારી લઈને રામજી હનુમાનજીના લેફ્ટ પગના અંગૂઠા પાસે તમારા ઇન્ટેન્શન્સ બોલીને એ સોપારી મૂકશો તો આઈ બેટ ઓન ઇટ 11 ડેઝમાં તમારી પાસે રિઝલ્ટ છે. 11 ડેઝ, રાઈટ? તમને કોઈ પસંદગીનું પાત્ર હોય મિતાબેન, હા, અને કદાચ તમને એમ લાગતું હોય કે હું મારું ફિલિંગ વ્યક્ત નથી કરી શકતો, તો એવા સમયે આ ફર્સ્ટ જે ફિંગર છે ને એને આપણે જ્ઞાન મુદ્રા કહીએ છીએ, અને આ જે મધ્ય જે ભાગ છે ને ત્યાં આને ટચ કરવાની હોય, હા, બરાબર? અને બેને વાત કરી ઓમ ક્લીમ નમઃ. હા, આ મંત્ર એટલો બધો અક્ષર હોય છે, પણ બીજું તમને કહું, તમારે કોઈની સાથે ઇગોઇસ્ટ કોઈ જેમ કે પ્રેમની અંદર ઈગો હર્ટ થાય તમારો, અથવા તો જે પછી બોલવાનું બંધ થઈ જાય, ઘણી વખત ક્રોધ થાય પછી બોલવાનું બંધ થઈ જાય, તો સેકન્ડ ફિંગર જે આ છે ને એ મધ્ય ભાગ જે છે ને એ કોઈ પણ પ્રેશર કરવાની, બીજું કઈ નથી કરવાનું હતું. તો આ પ્રમાણે તમે કરો તો સામેની વ્યક્તિને એવું ફિલિંગ થાય છે કે સમથિંગ રોંગ, એને ભલે ક્રોધ કર્યો પણ મારા સારા માટે કર્યો છે. પછી સામેથી પ્રપોઝલ અથવા તો એનો ફોન ઘણી વખત આપણે આ જોયું છે. આ જે આ કહેવાય ને આને સામાન્ય રીતે અંકુશ મુદ્રા કહેવાય છે, બરાબર? હવે સામાન્ય રીતે તમે જોજો કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સાથે તમારા આત્મવિશ્વાસથી આત્મવિશ્વાસ જોડાતો ના હોય, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પાવર. તમને એમ લાગે હું બોલું છું એના પર બોલી નાખે છે, મને સાંભળતા નથી, સાંભળતી નથી, હું જે કરું છું એમાં આથી બધું ઊંધું જ કરે છે, તો એવા સમયે આ થર્ડ ફિંગર એ જ આ મૂળ વસ્તુ આ છે કે અહીંયા તમારે જે અંગૂઠાની નીચે શુક્રની પાળ જે ખરો ને એ શુક્રના પાળથી બિલકુલ એના કોર્નરની અંદર આ પ્રમાણે પ્રેસ કરવાનું હોય, બરાબર? વાણી દ્વારા જયારે બગડતું હોય, વાત આપણે કરવા ઈચ્છતા હોય કઈ સામે કઈ ઈચ્છતા હોય કઈ, બરાબર છે? આપણે નથી કહેતા ભાઈ હું તો આપઘાત કરવા જઉં છું, હવે તારાથી ત્રાસ છે, તો કે સારું થેલી લેતા જજો, વળતા જો આપઘાત કરવાનો વિચાર ટાળી દો તો બટાકા લેતા આવજો 2 કિલો. તો આ બુદ્ધથી આપણને જોવા મળે કે આ બુદ્ધનો જે છે ને એ તમે અહીં લગાવો ને તમે, તો ઘણી વખત આંગળીની અંદર રહેલા આ આપણા સ્પંદનો, ઘણી વખત કોઈ પણ વ્યક્તિના આમે આંગળી કરી દઈએ ને એટલે અમે લાગે કે મારા વિશે વાત કરતા હશે, બરાબર? આંગળીની આ બધી તાકાત છે. તો આપણા જે હસ્તરેખા શાસ્ત્ર પ્રમાણે આ આંગળીના તમે જો પ્રેસ કરો છો, તમારું જે ફિલિંગ જે તમારું અટકતું હોય છે ને ત્યાં આંગળી તમને દુખવા લાગશે, બરાબર? સામાન્ય રીતે એક્યુપ્રેશરના પહેલા સિદ્ધાંતમાં બતાવવામાં આવેલું છે જે તમારી જે નળી જેને વધારે ક્રોધ થતો હોય ને આને વાળી નહીં શકે, તરત જ અહીંયા એને ટચ થશે. તો એવા સમય ક્રોધ ઉપર કાબુ રાખી અને આવતીકાલે કોઈને પ્રપોઝ કરવાનું તો કરી શકે મૂળ, તો બીજું શું કરીએ આપણે હવે? राइट राइट राइट. એટલે જે બોલી जो भी बोल नहीं सकता है कि भाई सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो महेंद्र भाई बोल रहे हैं ऐसे कीजिए. क्रोध થી બોલી ગયો ખોટું, એટલે उसको हर्ट कर दिया है तो उसको हर्ट कर दिया है ऐसे, ठीक है? This is the mudra. Can you see me, all of you? Right. ફાયર એલિમેન્ટ है, ફાયર એલિમેન્ટ અને અર્થ એલિમેન્ટ, બરાબર? બે મિક્સ કરો તમે એટલે કામ થાય. ઓકે ઓકે, રાઈટ. Anybody else? Any questions? नहीं? Kiran sir? Bijal, you have question? Okay. Unmute yourself. હિરેન સર, જય શ્રી કૃષ્ણ અને થેન્ક યુ તમે મને જોઈન કરી, અને ખરેખર જે પ્રશ્ન મનમાં સળવળતો હતો એ જ પ્રશ્નના મને જવાબ આ સેમિનારમાં મળ્યા છે, આટલા 1 કલાક દરમિયાન મને મળ્યા છે, એટલે તમારા બધા જ વડીલોનો હું દિલથી આભાર માનું છું. અને મહેન્દ્રભાઈ તમે ખરેખર બહુ જ ખુશ કરી, હવે દરરોજ બધી જ આંગળી એક વાર વાળી જ નાખીશ, કારણ કે કોઈના કોઈ પ્રકારે કંઈક પણ થયા કરતું હોય છે, એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ આંગળી નહીં પણ એક્ઝેક્ટલી રણચંડી જગદંબા થઈ જશે, રણચંડી જગદંબા થઈ જશે. સર મને એવું જ કહે છે, હું ઝાંસીની રાણી છું. મેમ ઝાંસીની રાણી જેવું જ કાર્ય છે આખી જિંદગી મારું. હા તો આમ કરશો તો એવું થઈ જશે, પછી દાંત બી બીચવા પડશે આમ કરીને. આ જાઓ.
ના હવે સ્ટેજ માંથી બહાર નીકળવા માંગુ છું પણ મેમ મારો ખાસ જે પ્રશ્ન હતો થેન્ક યુ મહેન્દ્ર સર તમે ખૂબ જ એમ ખુશ કરી દીધા તમારા વાણીના પ્રભુત્વથી મેમ મારો એક પ્રશ્ન હતો કે મારી ડોટરનું હમણાં અમે લોકો ઓસ્ટ્રેલિયા માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે અને 6 બેન્ડ આવ્યા છે પણ ખબર નહીં કોઈ કારણસર અપ્રુવલ નથી મળતું કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે તો એના ક્લિયરન્સ માટે મને ખાસ જાણવું છે આનો ઉપાય આપણે કાલે લીધેલો છે. ઓકે મેમ કાલે શિવરાત્રીના પ્રયોગો જે બધા છે ને એમાં કાલે બધા જોઈન ટાઈમસર થઈ જજો બીકોઝ વી હેવ અ લિમિટેડ ફેસિલિટી ઇન અવર ઝૂમ એટલે ટાઈમસર બધા એન્ટ્રી લઈ લેજો. અને ખાસ મિતાબેન આ સિદ્ધિનું જે હાસ્ય છે ને એ લોકરમાં મૂકીને આવી છે એ કહેજો એને જ્યારે લઈને આવે કાલે ખોલીને લાવે અને પરિવારનો તો બરાબર છે સમજતા નથી એટલે બે નંબરની વાત છે. ના એ समझे છે એવું માનતા નહીં है राकेश जी आप समझते हैं ना महेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं જ્યારથી વૃંદાવનમાં ચશ્મા લઈ ગયા ત્યારથી થોડુંક આમ પેલું પ્રેશર થઈ ગયું છે. क्या कह रहे हैं महेंद्र भाई थोड़ा वापस बताइए please। वृंदावन में आपका चश्मा कौन ले गया था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बंदर ले गया था बेचारे चश्मा नहीं पहनते और वृंदावन से ये भी समझ में आ गया थैंक यू नहीं बोलने का थैंक यू नहीं 200 रुपया दोगे. We come to the end of this session. Thank you all. Hiren sir, thank you. बहुत short notice पर તમે આવ્યા હતા. સિદ્ધિ, thank you. અને મહેન્દ્રભાઈ તો વિધાઉટ નોટિસ જ છે એટલે થેન્ક યુ સો મચ મહેન્દ્રભાઈ. Thank you all. Thank you for joining us tomorrow at 9:30. Again, we are meeting for Shivratri remedies. જેને બી જે બી સવાલ હોય, we'll clear all the questions tomorrow. Thank you all. Thank you. થેન્ક યુ મેમ થેન્ક યુ હિરેન સર Thank you. Thank you, Hiren sir. થેન્ક યુ ઓલ ચલો થેન્ક યુ સૌ બધાને મિત્રોને ગુડ નાઇટ. Good night. Good night. Thank you. thank you good night Good night. Thank you. થેન્ક યુ